આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી દળ એટીએસ એ પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા દેશવિરોધી કાવતરાના કેસમાં વધુ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। ના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીઓ જૈશ એ મોહમ્મદની વિચારધારાનો પ્રચાર કરી ગુજરાતમાં સંગઠનનું સક્રિય નેટવર્ક ઊભું કરવા તેમજ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવાના કાવતરામાં સામેલ હતા। આ કેસમાં અગાઉ 8 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો અને હવે વધુ 5 આરોપીઓની ધરપકડ થતાં તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તર્યો છે। એટીએસના જણાવ્યા અનુસાર 2 જુલાઈ 2026ના રોજ એટીએસ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ યુએપીએ 1967ની કલમ 13, 17, 18, 38 અને 39 તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા બીએનએસની કલમ 61 અને 148 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો। તપાસ દરમિયાન અગાઉ ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી જૈશ એ મોહમ્મદનો ધ્વજ, આતંકવાદી મસૂદ અઝહરના જેહાદી પુસ્તકોની પ્રિન્ટેડ નકલો, મસૂદ અઝહરને લખાયેલા પત્રોની નકલો અને આતંકી પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય તેવી આશરે રૂ. 1.30 લાખની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી। ની પૂછપરછ દરમિયાન ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે। તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીઓમાંથી કેટલાક વર્ષ 2023મી બોમ્બ બનાવવાની પદ્ધતિ અને આઈઈડી ડેટોનેટ કરવાની તકનીક શીખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા। તેઓએ અકેલા મુજાહિદ જિહાદ કેવી રીતે કરે સહિતના જેહાદી સાહિત્યની પ્રિન્ટેડ નકલો મેળવી તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો। ના જણાવ્યા મુજબ આરોપી મોહમ્મદ અમીન શેરા દ્વારા જેહાદી ભાષણો અને ધાર્મિક કટ્ટરપંથી વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપતી તકરીરો પણ આપવામાં આવતી હતી। તપાસમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વર્ષ 2023મી ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન આરોપીઓએ અલગ અલગ સ્થળોએ કુલ 8 વખત વિવિધ પ્રકારની ટાઈમર મિકેનિઝમ આધારિત વિસ્ફોટક વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ અને પરીક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। બોમ્બ બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ તેમજ સ્થાનિક બજારમાંથી ખરીદવામાં આવી હોવાનું પણ એટીએસએ જણાવ્યું છે। તપાસ દરમિયાન આઈઈડી બનાવવા માટે ઉપયોગી સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે। પાંચેય આરોપીઓની 15 જુલાઈ 2026ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે। હવે તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે આ નેટવર્ક સાથે અન્ય કોણ કોણ જોડાયેલા હતા, તેમને ક્યાંથી માર્ગદર્શન અને આર્થિક મદદ મળતી હતી તેમજ તેમની પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ કેટલો હતો। નોંધનીય છે કે આ તમામ વિગતો ગુજરાતની સત્તાવાર પ્રેસનોટમાં દર્શાવવામાં આવેલી માહિતી પર આધારિત છે। કેસની તપાસ ચાલુ છે અને આરોપીઓ સામેના આરોપો અંગે અંતિમ નિર્ણય સંબંધિત અદાલત દ્વારા પુરાવાના આધારે કરવામાં આવશે। आप सभी के ध्यान पर है कि कुछ समय पहले गुजरात एटीएस में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस एफआईआर में मुख्य तथ्य इस तरह से थे कि डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन में रहते हुए कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में है। ये वहां से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एक उन्होंने लोकल तंजीम बनाई है दारुल इस्लाम गुजरात के नाम से, जो कि जैश ए मोहम्मद की एक यहाँ पे एक उसका ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेस की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर का आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। जो इन्वेस्टिगेशन टीम के आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। जब डिटेल इंट्रोगेशन किया गया तो जानने को मिला कि कुछ और भी आरोपी हैं जिनका नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाल, मोहम्मद अयूब सुनसरा,
शफी रईस मुखी और मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये पांचों आरोपियों, अमीन शेरा और साथ साथ में अहमद और जकरिया, इनके भी ध्यान में ये चीजें थी। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पांचों आरोपी हैं, इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट के सामने इनको प्रोड्यूस किया गया है और ये कोर्ट में लगभग इनके 8 दिन के हमें रिमांड मिले हैं। ये जो पांचों आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा से पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सोनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। शफी रईस मुखी जो है वो वडगाम बनासकांठा का है और उसको दावेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो ब्लास्ट है, इन लोगों ने जो मटेरियल है ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और लोकल मार्केट से परचेज किया है। ये जो मटेरियल है, इनमें से कुछ मटेरियल रासायनिक खाद के रूप में या इस तरह की प्रक्रियाओं में यूज होता है जो आसानी से मिल जाता है। साथ साथ में इसके लिए जो पैसा है वो इन्होंने खुद की बचत में से इस पैसे का यूज किया गया है। लगभग 8 बार इन्होंने इस तरह का ट्रायल किया है जिसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव को अलग अलग डिटोनेशन मैकेनिज्म से फोड़ने का प्रयास किया है। सर, ये बताया कि इसमें जो पहले जो 8 लोग पकड़ाए थे उसमें से अहमद, इब्राहिम और मोहम्मद साउदी, ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तानी जो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में थे। ये जो इस मॉड्यूल का एक जो दूसरा भाग है जिसके अंदर की ये लोग एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर रहे थे, इसके लिए उन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट मिला हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी तक एटलीस्ट हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। ये प्रयास लगभग पिछले 2-3 सालों से कर रहे थे और ये जो लेकिन इनकी जो प्रेरणा है वो यहाँ पे जो जैश ए मोहम्मद की किताबें हैं उन किताबों से प्रेरित होकर कर रहे थे। खास करके एक अकेला मुजाहिद जिहाद कैसे करे, ये किताब है जिसके अंदर से इन्होंने एक्सप्लोसिव के बारे में जाना और डेटोनेशन की अलग अलग मैकेनिज्म पे काम किया। अभी तक जितने लोगों के नाम खुले हैं उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये 13 लोग जिनके नाम खुले हैं, अगर इनके इंट्रोगेशन में या फर्दर इनके जो मोबाइल्स हैं उनके एनालिसिस से किसी और लोगों का नाम एज अक्यूज आता है तो उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जितने लोगों के नाम खुले हैं वो सभी हमारे डिटेंशन में है। कश्मीरी की आइडेंटिटी को हम प्रयास कर रहे हैं उसका नाम खोलने की। जहां तक बात है कि कोई पाकिस्तानी हैंडलर इस नए ग्रुप के साथ में कांटेक्ट में है, तो अमीन शेरा थ्रू अहमद और इब्राहिम एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में था। जो नए 5 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनके फोन से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है कि ये लोग डायरेक्टली पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में या अब्दुल्ला के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ऐसा इन लोगों के एनालिसिस से अभी तक नहीं मिला। इस केस के देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा केस होता है तो गुजरात एटीएस और सभी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट पुलिस हैं, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। इनके कहीं तार किसी दूसरी जगह से जुड़े हुए हों, इसके बारे में पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। पहले जब 8 आरोपी थे उस समय भी हमने एक आरोपी को जब एमपी से उठाया था तो एमपी पुलिस ने इसमें काफी मदद की थी। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी बहुत सारी एजेंसियां इसमें जुड़ी हुई हैं और वो अपने यहाँ का कोई लिंक होगा तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। अपने गाँव के